ہمارا دشمن ایک ہے اور اس کے اہداف مشترکہ ہیں۔ کون ہے وہ دشمن؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا، دیکھیں یہ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں، یہ اگر آپ نقشہ دکھائیں نا، یہ ایکچول نقشہ ہے، یہ وہ نقشہ ہے جس کے اندر کوئی کسی کے اندر مداخلت نہیں کرتا، دنیا امن سکون کا سانس لے رہی ہے۔ یہ آج کا نقشہ ہے، یہ آج کی تاریخ کا، جس میں کوئی کسی کا بارڈر نہیں کراس کر رہا اور ہر کوئی اپنے نقشے پہ موجود ہے۔ یہ ہے پریزنٹ، ٹھیک ہے۔ اب دنیا کے اندر آبادی کرنے کی ایک سوچ کا آغاز کرتی ہیں عالمی طاقتیں اور اس کے اندر نشانہ بناتی ہیں ایشیا کے ہدف کو۔ میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں اس لیے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اب جب ہدف کا نشانہ بناتے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ ایشیا کو چنتے ہیں، کیونکہ کثیر آبادی ایشیا کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر یہ چپکلش شروع ہوتی ہے مسلمان ممالک میں، جس کے اندر آپ آ جائیں جارڈن، شام، لبنان، عراق، ترکی، ایران اور پاکستان۔ اب جو ہمارے ملک کے اندر لوگ یہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ انڈیا بلوچستان کو الگ کرنا چاہتا ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا ہدف جو ہے وہ گوادر ہے، گوادر پورٹ ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو آدھا سچ ہے نا۔ یہ پورا سچ کیوں نہیں بولتے؟ پورا سچ یہ ہے کہ جس طرح عالمی طاقتیں ہمارا بلوچستان الگ کرنا چاہتی ہیں، جس کا رقبہ ہے 1,81,785 اسکوائر کلومیٹر، اسی طرح ایران کا ایک بلوچستان بھی موجود ہے جو ہم سے رقبے میں دگنا ہے، جس کا رقبہ ہے 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر۔ ٹھیک ہے۔ تو عالمی طاقتیں صرف پاکستان کے بلوچستان کو الگ نہیں کرنا چاہتی ہیں، عالمی طاقتیں ایران کے بھی بلوچستان کو الگ کر کے ایک آزاد بلوچستان بنانا چاہتی ہیں۔ وجہ میں بتاتا ہوں۔ چائنا کے 3 پلان تھے ترقی کرنے کے، اور یہ میں 2010 سے بتاتا آیا ہوں، عوام پاکستان کو سنتے ہی نہیں ہیں، جب تک پڑے نا سر پہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ ایک پلان اے تھا گوادر میگا آئل سٹی، پلان بی تھا چابہار میگا آئل سٹی، پلان سی تھا عدن اور ایتھوپیا کا بیس۔ پلان اے کے اندر جو ہمارا گوادر ہے وہ بھی بلوچستان کے اندر ہے، پلان بی کے اندر جو چابہار ہے وہ بھی بلوچستان کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں بلوچستانوں کو آزاد کر کے عالمی طاقتوں نے یہ نقشہ بنایا۔ اب اس نقشے کو کلوز کریں۔ آپ کی پہلے چلیں، آپ نے یہ نقشہ دکھا دیا، آپ کی نظر میں ایک آزاد بلوچستان بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں عالمی طاقتیں۔ لیکن تھوڑا سن لیں، بتائیں۔ یہ ہے بلوچستان، یہ آپ کا بلوچستان نہیں ہے، آپ کا بلوچستان بھی اس میں اور ایران کا بھی بلوچستان اس میں۔ یہاں پر ہے بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، جند اللہ، لشکر جنگوی آزادی کی موومنٹ چلا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک موومنٹ چل رہی ہے ایران کے بلوچستان میں، جس کو جند اللہ اور مجاہدین خلق اور کردش فریڈم آرمی جو ہے وہ موومنٹ چلا رہے ہیں۔ اچھا چلیں، اب ذرا ایک آپ کی تھیوری میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے، تھوڑا سنیں بولیں۔ یہ ہے ایران کا بلوچستان اور پاکستان کا بلوچستان، جس کو الگ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کا نقشہ بھی تو دیکھیں نا، کہ پاکستان کو کہاں توڑا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر رہ جائے گا صرف سندھ اور پنجاب۔ پاکستان کا NWFP یعنی KPK اور گلگت بلتستان کو دے دیا افغانستان کے کھاتے میں۔ افغانستان کا نقشہ بڑا ہو رہا ہے۔ یہ نقشہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ عالمی نقشہ ہے بھائی۔ نہیں، یہ تو سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہے، یا آپ یہ سوچ رہے ہیں گھومنا ہے، اس پہ ڈسکس نہیں کرنا دنیا میں۔ میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک چیز گھوم رہی ہے، آپ اس کو کس طرح اتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں؟ میں کرتا ہوں نا، میں آپ میری پوری بات سنیں گے تو میں اتھینٹیکیٹ کروں گا نا۔ اب کہاں ہے کہ یہ آپ کا افغانستان کی سرحد بڑھ رہی ہے، جبکہ کشمیر دے دیا انڈیا کو۔ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں عالمی طاقت ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ادھر آ جائیں تو ایران کا 40% طبقہ مائنس کیا گیا، ٹرکی کو توڑا جا رہا ہے۔ سنیں آپ غور سے، ٹرکی، عراق اور سیریا کے کردش ایریے کو، جو بلوچ ایریا ہے، اس کو توڑ کے بنایا جا رہا ہے آزاد کردستان۔ اسی طرح سعودی عرب کو توڑ کے جارڈن کی سرحد کو بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ یہ ہے اسرائیل اور گریٹر اسرائیل کا نقشہ۔ آپ نے آپ کی میں نے کافی ڈیٹیل سے بات سنی۔ 2 سوال۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ جی 3 مختلف پلان بنے ہوئے تھے، آپ نے گوادر کی بات کی، آپ نے چابہار کی بات کی۔ چابہار کے اندر تو وہاں سے ہی تو یہ انڈین را افسر وہیں پہ آپریٹ کر رہا تھا، اس کے اوپر DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ ایک ٹریڈر کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا، ٹریڈنگ کر رہا ہے نا، ٹریڈنگ۔ اب میں یہاں پہ وہ مسلمان بن کے ملک سے پاسپورٹ بنا کے چلا گیا، آپ کے ملک میں 30 لاکھ افغانیوں کے پاسپورٹ بنے، جو کہ باقاعدہ منشیات کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہیں۔ اب آپ یہ کہنے لگے ہیں کہ بیسیکلی وہ را کا ایجنٹ نہیں ہے۔ یار سنتے ہی نہیں ہو آپ لوگ۔ میں نے کب کہا کہ نہیں ہے، وہ تو انویسٹیگیشن کلیئر ہو گیا، لیکن DGISPR نے کہا کہ ایرانی انٹیلیجنس یا ایرانی حکومت اس کو بیک نہیں کر رہی۔ ہاں بالکل۔ اب وہ آ گیا آپ کے ہاں، تو اب آپ بتا دیں آپ کی بارڈر فورس کیا کر رہی ہے؟ یہ تو راداریاں ہیں۔ نہیں وہ سنیں کیا مطلب ہے؟ بالکل ہے، اب اپنی ناکامی تو مانو پہلے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات یہاں تک درست ہے۔ ڈیزل اور آئل کو اسمگل کرتے ہیں۔ چابہار کو کس طرح بھول گئے آپ؟ لیکن چابہار کے اندر یہ شخص اگر آپریٹ کر رہا ہے تو کس طرح؟ Will you please finish my words?
चाबहार से ऑपरेट नहीं कर रहा, चाबहार में उसका ऑफिस है, उस रास्ते से अंदर आता है पाकिस्तान में और यहाँ ऑपरेट करता है। ठीक, राइट। अब वहां पे ईरान की गवर्नमेंट की तो बैक नहीं है, DGISPR ने आपको क्लियर किया। ईरानी गवर्नमेंट ने ताउन का इजहार किया कि पाकिस्तान पे हमला, हम अपने ऊपर हमला तस्वुर करते हैं, ये आपको चौधरी निसार ने बताया, जो उनके सफीर ने पैगाम पहुंचाया। तो अब ईरानी गवर्नमेंट की तो मुलविस है नहीं इसमें। अब इसमें नाकामी क्या है? इसमें नाकामी है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये है राहदारियां, यहां से पाकिस्तानी नहीं जाते, पाकिस्तानी जाते हैं ताफ्तान के रास्ते। बाकी तमाम पाकिस्तानी जिनको मस्तूंग से लेकर ताफ्तान में हजारों की तादाद में कत्ल कर दिया गया। चाबहार से सड़क कौन बना रहा है? लिसन टू मी। चाबहार तक सड़क कौन बना रहा है? प्लीज लिसन टू मी। सड़क तो बनी हुई है ना, तभी तो ऑयल टैंकर आते हैं स्मगलिंग के। यहाँ पे आदमी तो छोड़ो, पूरे पूरे 300-400 ट्रक दाखिल होते हैं। अच्छा। डीजल और पेट्रोल लेके। आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मसला ये है कि उस पर बैठे हुए आदमी नहीं गिनते, ट्रक के ऊपर पैसे गिन रहे होते हैं। भाई आपकी पूरी थ्योरी में फॉल्ट है। वो इसलिए फॉल्ट है, आप ग्वादर तक बात करते हैं, आप पाकिस्तान तक बात करते हैं, वो चलें किसी तरह मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूं कि चाइना के इंटरेस्ट वहां पे हिट होता है, लेकिन जो आप चाबहार की बात होने देंगे, आप मेरी भी तो सुन लेना। चाबहार के हवाले से जब आप अपना प्लान पेश करते हैं, उसके अंदर फॉल्ट इस तरह है कि वहां पे तो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। इंडियन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंडिया का एक ताजिर वहां पे नाम बदल के और जाके उसने वहां पे तिजारती सरगर्मियां शुरू की और उसने आपकी राहदारियों का रास्ता लेके पाकिस्तान में दाखिल हुआ। वहां तो इंडियन एजेंट मौजूद है। आप बहुत चीख रहे हो, मैं जो आपको चीख के बता रहा हूं पिछले 25 दिन से कि के इलेक्ट्रिक अबराज के अंदर 25 डायरेक्टर इंडियन है। देखा आप लोगों ने जाके कभी उस पर बात की आप लोगों ने? टॉपिक चेंज हो रहा है। नहीं, बात आपकी अलग गलत है ना। मैं तो मैप्स के हवाले से बात कर रहा हूं। मैप्स भी तो आ रहा हूं। तो आपने मैप सोशल मीडिया से उठाया। सोशल मीडिया नहीं है भाई, ये मैं बताते हुए अर्ज आया हूं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। बताएं। ये तेल बिछा हुआ है हर मुल्क के अंदर। ये टर्की में भी बिछा हुआ है, टर्की को भी तोड़ रहे हैं। ये सीरिया में भी बिछा हुआ है, सीरिया में भी तोड़ रहे हैं। ये इराक में भी बिछा हुआ है, इराक को भी तोड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान में भी बिछा हुआ है, पाकिस्तान को भी तोड़ रहे हैं। ये आलमी ताकतें अगर उसको आजाद बलोचिस्तान का दर्जा दे रही हैं तो फिर हकीकत बोलो और सच बोलो कि यहां पे आलमी ताकतें मुलविस हैं। आप ईरान को लेकर घूम रहे हैं। किस तरह पहुंचे? मैं इसलिए पहुंचा कि ये दूसरा नक्शा, ये है इसराइल का तीसरा नक्शा नहीं, ये दूसरा है। तीसरा आ रहा हूं। अच्छा, ये है इसराइल का माइंडसेट और ये पूरा है ग्रेटर इसराइल। मैं आपको दुनिया के खाली माइंडसेट बता रहा हूं, अब तलाश खुद कर लेना आप। यहां से ये हमारा पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का पूरा हिस्सा दिखा दिया इन्होंने खुरासान बना के। ISIS और दाश आपके यहाँ मुलविस हैं। आपके यहाँ भारी तादाद के अंदर अजबिक, ताजिक, चेचन जो है। चौधरी निसार की आप बात करते हैं, उन्होंने तो कहा ISIS है ही नहीं, दाइश है ही नहीं पाकिस्तान। मेरी बात करें ना, मैं आपको मेरी बात तो चौधरी निसार की आधी बात मैं यह बात कंप्लीट कर लूं या आप यार खबरनामा बनाया हुआ? आप पहले बात कंप्लीट करें फिर मैं अगला। ये है खुरासान, ये है खुरासान, ठीक। ये है ISI इसराइल का माइंडसेट, ठीक। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान को खुरासान स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है ISI और दाश के जेर हाकमियत। इसमें इंडिया भी शामिल है? इंडिया का कुछ हिस्सा शामिल है। अच्छा, इसके अलावा सऊदी अरब और तमाम रियासतों को बिल्कुल अलग करके और एक इस्लामी स्टेट डिक्लेयर कर दिया और ग्रेटर इसराइल का नाम दिया उन्होंने। ये नॉर्थ अफ्रीका शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, पाकिस्तान और कुछ इंडिया और ईरान भी शामिल है। और ये है तीसरा नक्शा जिसको कहते हैं गवादर मैगॉयल सिटी का नक्शा। ये है चाइना का माइंडसेट। अच्छा, इसके अंदर इंडिया जो है 6 टुकड़ों में बटा हुआ है, जबकि इंडिया सिर्फ रह गया गुजरात के अंदर। बाकी पाकिस्तान जो है अपने नक्शे से 3 गुना बढ़ा है, लेकिन इसमें किसी जंग की जरूरत नहीं है। अच्छा। यह है इक्तिसादी जंग, जो कि गवादर मेगा ऑयल सिटी कहते हैं, जहां पे इंडस्ट्रियल जोन बनना था। ये मैप से क्या होगा? मैं बता रहा हूं, मैप ही तो बनते हैं जिसके बाद माइंडसेट बनते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो मैं वो बता रहा हूं। अब पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर पूरा सर्वेलेंस किया अपनी मुआशी ताकत की वजह से। जो गवादर मेगा ऑयल सिटी के अंदर इंडस्ट्रियल जोन बनना है, वहां से प्रोडक्ट बननी थी मेड इन पाकिस्तान, जो कि इंडिया के अंदर जाते और इंडिया मुआशी और फाइनेंशियली तौर पर क्लैप्स कर जाता, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल जाइंट बन जाते इंडिया के मुकाबले में। और इस जिम के अंदर यहां जो रिफाइनरी लगनी थी गवादर मेगा ऑयल सिटी में, वो आनी थी ईरान से, जो गैस पाइपलाइन के जरिए आनी थी। तो एक्चुअल अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान में CPEC तो अभी आया है ना 2015 में, 2015 से पहले आप किसी पाकिस्तान के सहाफी या तजियाकार का गवादर मेगा ऑयल सिटी पे या ईरान गैस पाइपलाइन पे कोई तजिया लाके दिखा दे, मेरे अलावा मैं ही बताता था भाई। मैं इसका रिसर्चर हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो कहते हैं कि CPEC को निशाना बना रहा है ईरान, वो जाहिल है। उनको पता ही नहीं है कि गवादर मेगा ऑयल सिटी उस वक्त तक बन ही नहीं सकता जब तक यहां ईरान 4 लाख बैरल की ऑयल रिफाइनरी ना लगाए। वो क्यों? वो इसलिए कि जहाजों में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मिनरल वाटर डालोगे। मिनरल वो सिर्फ ऑयल के साथ तो ताल्लुक नहीं है ना। आपने जो पाक चाइना कॉरिडोर बन रहा है, जहाज है
5 लाख टन का जहाज है, कार थोड़ी है टोयोटा करोला, कितना पेट्रोल आता है उसके अंदर? नहीं सर, वो आपकी बात ठीक है, वो मैं आपसे डिसएग्री नहीं, तो ऑयल आपको सिर्फ ईरान से तो नहीं मिलेगा ना, ईरान से तो सिर्फ ऑयल नहीं मिलेगा, आपको सऊदीया से भी तो ऑयल मिलेगा। रिफाइनरी बनेगी, ठीक, रिफाइनरी बनेगी, एक आपकी गैस पाइपलाइन आ रही है, उसके साथ एक ऑयल की चाबहार से चलती हुई। लिसन टू मी, आखिरी नक्शा मुझे थोड़ी सी इस पे आपसे मजीद डिटेल चाहिए। लिसन टू मी, ये नाज़रीन को दिखाइए ना एक दफा, ये जो नक्शा आपने ये बनाया है, इसके मुताबिक हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान अपने साइज से हिंदुस्तान जो है तकरीबन आधा और बढ़ जाएगा। नहीं, 3 गुना बढ़ जाएगा। हाँ, कश्मीर हमारे पास आएगा, जिसमें इस नक्शे के मुताबिक मुझे लग रहा है कि भारत में पंजाब का हिस्सा भी हमारे पास तकरीबन मुंबई भी मुझे नहीं, वो आजाद मध्य प्रदेश है। इसके अलावा इसके जो है बिहार अलग है, खालिस्तान अलग है, जबकि आपका जो इंडिया है वो सिर्फ अहमदाबाद और गुजरात के एरिया के अंदर महकूम हो जाएगा। जो ये नक्शा, ये इक्तिसादी तौर पे सब कुछ, ये इक्तिसादी जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है जिसको ये तोड़ा जाएगा, पाकिस्तान, ईरान के बलूचिस्तान को, कुर्दिस्तान को तोड़ा जाएगा, इसमें जंग है। ठीक है, इसमें 2018 के अंदर आलमी जंग है। ये नक्शा उसी वक्त तकसीम होगा जब जंग होगी, जबकि ये है इक्तिसादी नक्शा जो कि आलमी ताकतें चाहती हैं कि ना बने। ये आलमी ताकतें नहीं चाहती, आपके मुल्क के सियासतदान भी चाहते, हमारे मुल्क के सियासतदान, इसीलिए टापी शुरू किया आपने। अच्छा, इसीलिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की गैस पाइपलाइन को, टापी को शुरू किया गया ताकि इंडिया को वो तवानाई मिल सके, ताकि इंडिया इंडस्ट्रियल जाइंट बन सके और चाइना का मुकाबला कर सके। ये सारी बातें जो आपने बताई हैं कि टापी का मंसूबा हमारे सियासतदानों ने इसलिए शुरू किया ताकि ये जो नक्शा आपने अभी पिन पॉइंट करवाया ये इंप्लीमेंट ना हो सके, इसी तरह है ना? ऐसे ही है। तो इस पे हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको तो खबर होगी ये सारी, उनके सामने बन रहा है ना। तो आपके नजर में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज टापी के खिलाफ हैं? टापी हमारा मकसद था ही नहीं, 2013 के अंदर मारिज़े वजूद में आया। ठीक है, और अर्जेंट अभी मैं ये भी बताता चलूं कि टापी का कोई नक्शा पाकिस्तान में बनाने वाला है ही नहीं, तो बना आया। अच्छा। और बनाने के बाद इसके अंदर टोटल गैस जो है वो सीधी इंडिया जाएगी, इंडिया को मजबूत करने के लिए आया। इंडिया की हर घर जो है फैक्ट्री में डाइवर्ट कर जाएगा, मेड इन इंडिया प्रोडक्शन आम हो जाएगी और चाइना डिक्लाइन कर जाएगा। टापी के बाद अगर टापी कंप्लीट हो जाता है तो चाइना डिक्लाइन कर जाता है। वो 3 नक्शे चल रहे हैं ना। अब एक आलमी ताकतें चला रही हैं जिसके अंदर पाकिस्तान और ईरान का बलूचिस्तान तोड़ना है, दोनों तरफ आजादी की तहरीकें शुरू हैं। अब ईरान का सदर जो कह रहा है हमारे दुश्मन के आदाफ एक हैं, तो वो एक यही है ना कि अगर हमारा अकेला बलूचिस्तान नहीं जाएगा, ये याद रखना आप, ईरान का बलूचिस्तान